Hello, welcome back in Anjeev Academy. Today we are going to learn about cut paste and copy paste options. This is the most important features of the any word editor and most of times you require it. You need it. Whenever you work with the computer, whenever you use the internet, whenever you open any websites and sometimes you want to copy something from there. So in that case, or you want to copy something from the other documents to your current document, means maybe some data from the Excel, maybe some data from the other Word document. So this way you want to copy something from there. Okay. So now let us start. What is the meaning of the cut copy paste? Cut copy paste is a features which allow you can copy something from the other file and you can paste it here. In the same way, you can do the cut and paste. In a cut paste, what happened? You have to take something from the other file and you want to paste it in the this file. Means that you don't want to keep the same thing in another file. You want to remove from there, or you want to remove from the any location and you want to shift it from somewhere. In that case, we have to use the cut and paste and copy and paste. How you will get this option? For this option you have to click on the home tab and you will see these buttons are here: cut, copy, paste and format. But unfortunately this cut and copy and paste button is not highlighted, means you are not able to click here. Whenever you try to click it, do nothing. Because what the reason behind this? Because you have not selected any text, you have not done any copy options, you have not done the cut option. Paste option is only used when you have done prior cut and copy option. मतलब कट कॉपी करने के बाद ही आपका पेस्ट ऑप्शन यूज होता है. अब आप कट या कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले किसी भी कंपोनेंट को सेलेक्ट करना होगा. जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया. अब मैंने यहाँ से कट कॉपी एंड पेस्ट को सेलेक्ट किया. अब देखिए इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पे कट एंड कॉपी का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है. पेस्ट अभी भी हाईलाइट नहीं है. तो आपको करना क्या होगा? आप मान लीजिए इसको यहाँ से कट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, तो आप कॉपी पे क्लिक कीजिए. कॉपी पे क्लिक करते ही यहाँ से देखिए पेस्ट ऑप्शन भी आपका हाईलाइट हो गया. और सपोज कीजिए कि मैं इस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ इस पेस्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा. पेस्ट पे क्लिक करते ही आप देखिए ये ऑप्शन सेम चीज, सेम थिंग्स जिसको आपने कॉपी किया था वही चीज यहाँ पे पेस्ट हो गया. आप चाहें तो कहीं और से भी पेस्ट कर सकते हैं. जैसे इसको मैं आप चाहे कितनी बार उतनी बार आप इसे पेस्ट कर सकते हैं. दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस फाइल. ठीक है. कट ऑप्शंस. कट ऑप्शंस का मतलब होता है कि इफ यू वांट टू रिमूव इट फ्रॉम हियर, जैसे सपोज करो कि कॉपिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट, आई डोंट वांट टू राइट दिस थिंग्स हियर, आई डोंट वांट टू इग्नोर. तो व्हाट आई हैव टू डू? मैं यहाँ पे कट करूंगा. कट करते ही देखो वो कंटेंट वहां से गायब हो गया, मतलब रिमूव हो गया. नाउ यू हैव टू पुट योर कर्सर समवेयर. यू कैन पुट योर कर्सर हियर आल्सो, नो प्रॉब्लम, and you can do the paste. But after doing the one times cut, you are able to make several time paste option. Look at this. I'm doing the paste, I'm clicking on the paste and it's going to the paste continuously the same content which you cut last time. Now you have think that कि what happened about this previous content, जो आपने पीछे कट कॉपी पेस्ट किया था उसका क्या हुआ? एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कट कॉपी पेस्ट करते हो, कट करते हो या कॉपी करते हो, तो जो प्रीवियस कंटेंट है वो ओवरराइट हो जाते हैं और उसके जगह पे लेटेस्ट कंटेंट ही अवेलेबल होता है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कट करके या कॉपी करके कहाँ जाता है. इसके लिए विंडोज के अंदर में, एमएस ऑफिस के अंदर में क्लिपबोर्ड नाम का कंसेप्ट है. क्लिपबोर्ड नाम का एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपके कट या कॉपी किए हुए कंटेंट को रखा जाता है और वो आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए उसको रख सकते हैं. ठीक है. अब आइए, अब इसके कुछ एडवांस ऑप्शंस भी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. यहाँ पे मैं आपको बता दूं कट का शॉर्टकट, कॉपी एंड पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हो और कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हो. ठीक है. तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. मैं इंटरनेट से भी आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा सकता हूँ. आप कोई साइट्स ओपन कर लीजिए, वहां से भी आप इंटरनेट से अगर चाहें तो आप किसी भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. किसी ब्राउजर में कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सर्च करना है, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे वेब ब्राउजर स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे किसी कंटेंट के बारे में सर्च करना चाहता हूँ. मैं सर्च करना चाहता हूँ हाउ टू डू कट एंड पेस्ट, हाउ टू डू कट एंड पेस्ट. और ये इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है अभी. चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. मेरा इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है, अब ये कनेक्ट हो जाएगा. नाउ इट्स गोइंग टू सर्च. अब ये सर्च कर रहा है कि हाउ टू डू कट एंड पेस्ट. अब जैसे ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे, अब मान लीजिए मैंने किसी साइट को खोल दिया.
अब ये साइट खुल गया हमारा यहाँ से। अब सपोज कीजिए यहाँ से मैं कट तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये हमारा कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मुझे इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना है, मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने वर्ड की फाइल में आ जाता हूँ। वर्ड की फाइल में आने के बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया। आप राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से पेस्ट ऑप्शन ले सकते हैं। जब आप पेस्ट ऑप्शंस को लेते हैं तो पेस्ट ऑप्शंस में आपके पास तीन तरह के ऑप्शंस आते हैं। जब आप राइट क्लिक करके पेस्ट लोगे तो यू विल सी दिस थ्री ऑप्शंस आते हैं डिफरेंट अपॉन दैट कंटेंट। अब पहला क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। क्या है ये, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब कि जैसा कि फॉर्मेटिंग वहां हुआ किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके फॉर्मेटिंग अलग तरीके से, फॉन्ट साइज कैलवरी है, फॉन्ट साइज 11 है, फॉन्ट नेम कैलवरी है, जिसको क्या फॉन्ट टाइप कहते हैं। बट आप जब यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट पे जा रहे हो तो देखो ये पहले तो कह रहा है कि बुलेट लिस्ट में, चलो मैं एक बार फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट पे आ रहा हूँ। तो अब ये देखो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग को रख के पेस्ट कर देता हूँ, सपोज मैंने पेस्ट कर दिया, तो देखो इसका फॉन्ट क्या हो गया, जॉर्जिया 12 हो गया, है ना। इसका साइज एंड कलर्स जो साइज है, कलर्स भी चेंज हो रहा है यहाँ से। अब मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, दैट इज द अनडू, दैट इज द अनडू। मैं फिर से एक बार राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग में क्या हो गया कि इसने कुछ इन्फॉर्मेशन तो वहां से ले लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जैसे देखो फॉन्ट का साइज तो वही रहने दिया, बोल्ड इटैलिक कर दिया इसने, क्या कर दिया यहाँ पे, बोल्ड और इटैलिक कर दिया, बोल्ड मतलब रहने दिया कंटेंट को। फिर से राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेस्ट एज कीप टेक्स्ट ओनली, मतलब क्या आ गया, कीप टेक्स्ट ओनली। तो जो टेक्स्ट है बिल्कुल उसी तरीके से कॉपी हो जाएगा, कोई फॉर्मेटिंग। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फास्टर मेथड जो है वहां पे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ था। अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, एक बार फिर से मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, मैं एक बार फिर से पेस्ट करके आपको दिखा दूं कि यहाँ पे राइट क्लिक किया और पेस्ट पे चला गया, तो देखो ये कैसे आ गया, मर्ज एट लिस्ट। अभी ऑप्शन चेंज हो गया क्योंकि कर्सर के पोजीशन के हिसाब से है। जब आप इसके आसपास रहते हो, देखो आप इसके आसपास हो, इस लिस्ट से पहले हो, तो इसने क्या किया, आप यहाँ से मर्ज लिस्ट कर सकते हो, डोंट मर्ज लिस्ट कर सकते हो, कीप टेक्स्ट ओनली कर सकते हो। देखो अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, इस तरीके से आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द राइट क्लिक एंड पेस्ट, ठीक है। अब कई चीजें, मान लीजिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ना, कई बार आप इमेज के फॉर्मेट में भी उसे पेस्ट कर सकते हो, एज ए इमेज पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेस्ट, ये देखो ये ऑप्शंस यहाँ भी दिख रहा है जिसको हम पेस्ट ऑप्शंस कहते हैं। इसके शॉर्टकट्स हैं कीप टेक्स्ट ओनली, टी, मर्ज फॉर्मेटिंग एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल क्या है, कई बार आप एचटीएमएल फॉर्मेट में भी इंफॉर्मेशन को पेस्ट कर सकते हो, अनफॉर्मेटेड यूनिकोड के फॉर्मेट में आप इसे पेस्ट कर सकते हो। देखो मैं पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, अब ये अनफॉर्मेटेड यूनिकोड में इसने क्या किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर से मैं पेस्ट स्पेशल पे जा रहा हूँ और इस बार मैं यहाँ से इसे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के फॉर्मेट में कर देगा, तो देखो एकदम सिंपल फॉर्मेट में टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हो रहा है आपका। कर्सर जिस पोजीशन पे रहेगा कॉपी उसी जगह पे होता है, ठीक है। अब मैं इन सबको एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करने के लिए मुझे डिलीट बटन को प्रेस करना होगा, जस्ट क्लिक ऑन द डिलीट बटन, ये डिलीट कर दो यहाँ से डिलीट। अच्छा इसने सारे डिलीट कर दिए, मेरे कंटेंट को भी डिलीट कर दिया इसने, मुझे सारे कंटेंट तो डिलीट नहीं करने थे, मैं यहाँ से डिलीट सेलेक्ट करता हूँ and now I'm going to delete it, ठीक है। and again I'm selecting this and delete it, ठीक है। तो मेरे कंटेंट्स यहाँ से डिलीट हो गए। चलो अब इसने नीचे वाले कुछ कंटेंट्स को उठा लाया, मैं यहाँ पे एक बार कर्सर ला के और कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरे नए पेज पे चला जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे पेस्ट पे आइए, यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे फिर से आते हैं और इसमें एचटीएमएल फॉर्मेट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल एचटीएमएल फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट वहाँ की थी फाइल की बिल्कुल इसी फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अब है एक फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, जरा सा भी इसको समझना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप इस टेक्स्ट को, मैं देखता हूँ मैंने इस टेक्स्ट को बोल्ड रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्मेट, और मान लो मैंने इसके साइज को भी थोड़ा सा मतलब बिगा साइज कर दिया, कुछ टेक्स्ट इफेक्ट भी इस पे अप्लाई कर दिए मैंने। अब मैं चाहता हूँ यही वाला टेक्स्ट इफेक्ट इस फॉर्मेट पेंटर पे भी अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट आई विल कीप माय कर्सर एट दिस पोजीशन, आई कीप माय कर्सर एट दिस पोजीशन एंड देन आई मूव ऑन द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शंस। मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा, नाउ लुक एट द माय कर्सर पोजीशन। इस कर्सर को ध्यान से देखिए, देखिए एक ब्रुश के साथ ये कर्सर आई शेप का आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस फॉर्मेट पेंटर, मैंने इसको सेलेक्ट करके, आपने क्या महसूस किया कि फॉर्मेट पेंटर का जो यूज है, एक्चुअली फॉर्मेट पेंटर यूज टू कॉपी द फॉर्मेट,
कॉपी द फॉर्मेट, इट डज नॉट कॉपी द एनीथिंग एल्स। मतलब जो आपके कंटेंट, जो सेलेक्टेड कंटेंट के फॉर्मेटिंग होंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग आप दूसरे कंटेंट पे अगर अप्लाई करना चाहते हो, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज द फॉर्मेट पैटर्न। ओके, नाउ द ओपन द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं? तो क्लिपबोर्ड को स्टार्ट करने के लिए आप सेलेक्ट करके कंट्रोल शी को 2 बार प्रेस कर दीजिए किसी चीज को, ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, गेट, या अब देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ये क्लिपबोर्ड स्टार्ट हो गया है। 2 बार कंट्रोल सी दबाने से आपका क्लिपबोर्ड स्टार्ट हो जाता है। आप जैसा देखिए अभी यहाँ पे क्या बोर्ड है, मैं एक बार फिर से कंट्रोल सी कर रहा हूँ। अब देखो ये ओपन क्लिपबोर्ड सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, दिख रहा है। लास्ट मैंने इसको किया था, अभी क्या हो गया, ये हो गया। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल, सपोज कीजिए कि आपने कई कॉपी कर लिए, कई कंटेंट, अगर आप सिंपल कंट्रोल वी करोगे, सिंपल कंट्रोल वी करोगे तो हमेशा लास्ट कट या कॉपी कंटेंट ही आपके पेस्ट होंगे। बट अगर मान लीजिए आप, मैं जैसे मैं यहाँ से पेस्ट स्पेशल को भी कंट्रोल सी कर देता हूँ, मैं कॉपी एंड पेस्ट को भी कंट्रोल सी कर देता हूँ, मैं कट एंड पेस्ट को भी कंट्रोल सी कर देता हूँ। कंट्रोल सी क्या है, शॉर्टकट है, कॉपी का शॉर्टकट है, ठीक है। अब मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, कर्सर को यहाँ रखा, और अब मैं इस बार दिस टाइम आई वांट टू पेस्ट, मैं बोर्ड को पेस्ट करना चाहता हूँ, तो बोर्ड पे क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शंस है, पेस्ट करना है या डिलीट करना है। आप क्लिपबोर्ड को देखो, इस बार मैं कॉपी एंड पेस्ट को पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कट एंड पेस्ट को पेस्ट करना है। सिंपल 1 क्लिक आपको करना है इसके, और ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास कि ये ऑफिस क्लिपबोर्ड कंट्रोल सी के साथ प्रेस करने पे ट्वाइस पे खुलना है या नहीं खुलना है, कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली आप कर दोगे तो अपने आप क्लिपबोर्ड आपका स्टार्ट हो जाएगा। शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग, इसमें टास्क बार में जब भी आप कॉपी करो तो स्टेटस दिखाएगा कि आपने कॉपी ऑप्शंस ले रखा है। तो इस तरीके से ये यहाँ से दिखता है। पेस्ट ऑल का मतलब क्या है कि हम सभी चीज को, जितने भी मैंने पीछे से रखा हुआ था कॉपी करके, मैं उन सबको पेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने पेस्ट ऑल कर दिया। देखो सारे के सारे कंटेंट पेस्ट ऑल हो गए। क्लियर ऑल से क्या होगा, आपका क्लिपबोर्ड खाली हो जाएगा। अब आप पेस्ट करोगे, अब आप यहाँ पे कंट्रोल वी करो, देखो कुछ नहीं हो रहा है, राइट। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट का ऑप्शन खत्म हो चुका है, पेस्ट स्पेशल कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। सेट डिफॉल्ट पेस्ट, अगर आपने कोई सेटिंग कर दी उसके हिसाब से आप उसको सेट डिफॉल्ट पेस्ट करना चाहते हो तो वो डिफॉल्ट पेस्टिंग में चला जाएगा। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट मोड में ये बिल्कुल सही काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।